completed every answer. What about second counseling? Practice strong for 2 months. है ना? Already going on. अच्छा, anyways, today's topic. So we are been studying. You are been studying enzymes in the last 2 classes. ठीक है? और as far as biochemistry, biochemical reactions are concerned, I'm sure you all have been agreed that enzymes play बहुत important role है सभी metabolic pathways. That is why before starting with the individual metabolism, we need to understand the basic structure. So classes पढ़ने आपने what is the classification of enzymes? How many classes are there? है ना? So it is expected that you students should be well versed in the categories के नाम along with examples. अभी क्या एग्जाम्पल जो अभी पढ़ाएंगे वो आपको हो सकता है रिकॉर्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट है. But when you apply that to the metabolic pathway, इसलिए particularly अपन carbohydrate metabolism start करेंगे. You see that there are those enzymes coming, kinase, isomerase, right, ligase. So whatever category is coming, आपको भी एग्जाम को भी इस कैटेगरी में रहना है. और तब आपको रिलेट करना इजी होगा और तब आपको एग्जाम्पल याद रखना इजी होगा. Now when we compare secondly, you have to study about the factors which affect enzyme action. So what are some of the common factors which affect enzyme action? First two things that are very important is that each enzyme has an optimum temperature and an optimum pH at which it is most reactive. या उसकी जो activity है activity वो maximum. Then besides these two factors, what is important? Concentration of substrate and concentration of the enzyme. Now, along with that, what comes is the concept of regulation of enzyme activity. जब भी हम कोई भी chemical reaction करेंगे body का, we have to keep in mind that हमारी body में ये सारे reactions simultaneously हो रहे हैं, and they have to be regulated as per the requirement of the body, at the level of the cell, at the level of tissue, at the level of the organ, and at the level of the entire body. ठीक है? जैसे rest position में कुछ reaction के लिए बढ़ेगी, कुछ reaction के लिए कम हो जाएगी, and फिर vice versa in a highly active condition. Active condition में जो reaction होती है, जैसे physical activity, it can be due to certain physiological states where the body comes under stress. For example, pregnancy is full total activity है जिसके अंदर हर concept, हर enzyme reaction, हर जो metabolic pathway है उसका थोड़ा सा relation आता है. Nutrition requirement differ करेगी. The overall mechanism of working the relation of working will be affected. तो बहुत सारे hormones में relation होता है इसमें affected. This activity physical pathological वो भी positive direction है. You know that because of any pathological effect body का temperature भी बढ़ सकता है. अगर temperature rise हो जाएगा again activity of certain enzymes will increase and of certain enzymes may decrease. So the idea is that we should be clear about how these factors are affecting the enzyme activity. Then enzyme activity regulation. और the regulation को पढ़ना है तो उसके लिए हमको क्या समझना चाहिए? The mechanism of enzyme. So what is the mechanism of enzyme? सबसे basic थोड़ी बताइए लॉक एंड की से. ठीक है, लॉक एंड की इसलिए it is easy to relate, easy to understand. कि जब तक कि वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी. राइट? तो keeping this in mind, वो ऐसा नहीं है हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट. only idea is that कि वो कहाँ जाके कैसे अटैच होगा किस तरह उस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा. राइट? तो रेगुलेशन कैसी तरह से होता है एंजाइम एक्टिविटी का इनहिबिशन होगा या फिर एक्टिवेशन होगा. एक्टिवेशन की भी बहुत से फैक्टर इंपॉर्टेंट है. कोएक्टाइन एंड दो फैक्टर. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोएक्टाइन एंड दो फैक्टर? नॉट एग्जैक्टली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, लेकिन हाँ जो एंजाइम होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो असिस्ट करेंगे
जरूरी है क्लासिक के लिए, तो हम जरूरी है अवेलेबिलिटी ऑफ एसिड another example of things like that. Then इसके अलावा एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन किस तरह का होता है, राइट, तो कॉम्पिटिटिव वेरी वेल अंडरस्टूड का नाम ही बता रहे हैं, ठीक है. देन नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होगा, not on the side but on some other side, and by attaching it then the one side change the configuration which makes the substrate of the enzyme inert. तो अब जब ये सारा कंसेप्ट पता है तो इन सबके एग्जांपल भी याद करेंगे. अगेन एज रिपीटिंग से मे भी अभी आपके लिए रिकॉर्ड करना डिफिकल्ट है, बट बेसिकली आप मेटाबॉलिज्म पढ़ो, उसमें जो आपको बेस्ट एग्जांपल लगे वो उनके सामने आप मदद करेंगे, क्योंकि जहाँ भी आपको मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ाएंगे वहाँ वो पाथवे का रहेंगे, वो पाथवे के इनहिबिटरी फैक्टर्स बताएंगे. अगर इनहिबिटर की बात करें तो इनहिबिटर की तरह से होगा एट द लेवल ऑफ द राइट. तो उस हिसाब से ध्यान रखना है कि कौन सा इनहिबिटर जो है वो एडिटिविटी रेगुलेट कर रहा है, एडिटिविटी कर रहा है, कौन सा कॉम्पिटिटिव. Now today we are going to discuss a very important concept. I think the first applied the clinical concept of biochemistry, that is the diagnostic importance of enzyme. So what is exactly the meaning of diagnose करना? पहले हम बात करते हैं diagnose करना तो आपको कंक्लूजन है that is diagnostic. कुछ फाइंडिंग्स के बेसिस पे कंफर्म करना है कंडीशन में, पैथोलॉजिकल कंडीशन में बेसिस पे होता है फाइंडिंग. So what is the role of enzyme as diagnostic factor, that is what we are going to study. अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये पॉइंट, बहुत स्कोरिंग भी है, एंड इट इज वेरी रेलेवेंट ऑल्सो, क्योंकि जो आपकी क्लिनिकल केमिस्ट्री का एक बेसिक कॉम्पोनेंट बनेगा ये दो पॉइंट. There are various biomarkers which are of diagnostic importance. उसमें enzyme एक काफी important category है, ठीक है. So let us see. We all know that enzymes can be defined as biocatalysts which are synthesized within the cell, and these enzymes are protein in nature. There can be certain exceptions, so the exception is already highlighted, and they are very specific in their action. When we say specific, what does it mean? Specific in terms of the type of reaction that they catalyze, and specific in terms of the substrate on which they act. So a large number of enzymes may be synthesized in the cell, and they are continuously being released into the circulation. Simultaneously, they are also being removed or degraded or excreted. Now, सर्कुलेटिंग एंजाइम, यूजुअली जो बायोकेमिकल एनालिसिस होता है वो किसका होता है, ब्लड का. So circulating enzymes, they can be categorized into two groups. First is the functional plasma enzyme and the other is the non-functional plasma enzyme. What does this mean? फंक्शनल यानी जो प्लाज्मा में ही कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम्स हुए. Like there are certain enzymes, there are proenzymes and their substrates which are present within the circulating blood, and there itself they are responsible for performing certain functions. Now इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, तो coagulation factors. वो सब zymogen फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, and they are activated as and when required within the blood. Another example can be lipoprotein lipase, जो लिपिड्स का डाइजेशन में हेल्प करते हैं. Then what are non-functional plasma enzymes? Those which do not have any specific function within the plasma, but they are present there in the blood because of a normal wear and tear of the cells. ठीक है, सेल्स का एक नॉर्मल वेयर एंड टेयर भी चलता है बॉडी में, कुछ सेल्स जो है वो डिग्रेड होंगे, फ्रेश सेल्स बनते रहते हैं. सो देयर लेवल इन द नॉर्मल ब्लड वुड बी क्वाइट लो, और व्हाट वी से इन अ टेक्निकल टर्म नॉन डिटेक्टेबल रेंज. बट अगर
ऑर्गन जहां पर एक्चुअली वो फंक्शन कर रहा है उस टिश्यू की डैमेज होगी तो इस पर्टिकुलर एंजाइम का अमाउंट ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मैनी फोल्ड. So during tissue injury, their level rises in the serum, and that is why they become diagnostic markers of that particular tissue injury. कैसे? For example, if we talk about liver disorder, अगर लिवर में कोई भी पैथोजेनिक इंफेक्शियस कंडीशन है, लिवर टिश्यू डैमेज हुआ है, तो जो एंजाइम्स नॉर्मली एक लो रेंज में होने चाहिए थे वो सब उस डैमेज टिश्यू में से ब्लड में आ गए और ब्लड में उस पर्टिकुलर एंजाइम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया. एंड दिस बिकम्स, हम ऐसा सस्पेक्टेड पेशेंट जिसमें हमें लग रहा है कि कोई लिवर डिसऑर्डर है या लिवर टिश्यू का डैमेज है, उसमें जब ये एंजाइम्स को हम डिटेक्ट करेंगे तो वी वुड नोटिस दैट देयर इज अ सेवरल फोल्ड राइज. एंड एंजाइम्स के साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है दैट लाइक जो रूटीन बायोकेमिकल पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल शुगर है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, विच आर द मेटाबोलाइट, द प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, उनका लेवल बढ़ेगा तो ऐसा हो सकता है कि भाई अगर 100 नॉर्मल शुगर है तो 150 आ गया, 200 आ गया, समथिंग लाइक दैट. बट ये जो नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम्स हैं, अगर टिश्यू डैमेज होगा तो अगर इनका नॉर्मल लेवल है अराउंड 30 यूनिट पर लीटर, तो उस कंडीशन में इनका जो है वो 100 टाइम्स हायर जा सकता है. इट कैन बी इन 1000. ओके, so the following plasma enzymes, they are well recognized as diagnostic tools. At this stage you should be able to at least enumerate and to further elaborate the diagnostic importance of these examples. Like first is lactate dehydrogenase, then very important transaminases. ट्रांसअमीनेजेस जो है आपके प्रोटीन रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आई एम श्योर आप लोगों ने 11th-12th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बेसिक पढ़ा होगा इसको. एंड इनका रोल डायग्नोस्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके ये कॉम्पिटेंसी में भी अलग से डिफाइंड है. AST and ALT, which were earlier known as SGOT and SGPT, that is glutamate oxaloacetate transaminase and glutamate pyruvate transaminase. Then another very important diagnostic enzyme is creatine kinase, right? GGT, alkaline phosphatase, acid phosphatase, amylase, lipase. ये कुछ enumerate किए हैं मैंने. There can be a long list, but इसमें basic तो आपको बताने आने चाहिए. So let us just discuss briefly one by one. Lactate dehydrogenase. अगेन आई एम रिपीटिंग, ये टॉपिक हम लेते पहले हैं लेकिन ये हम एंड में जब टाइम बचेगा तो हम इसको वापस रिकॉल के लिए आपको देंगे. गॉट इट? बिकॉज तब तक आप पूरा मेटाबॉलिज्म पढ़ चुके होंगे. तो इफ यू हैव स्टडीड ग्लाइकोलिसिस, अंडर एनारोबिक कंडीशन एक रिएक्शन एक्स्ट्रा होता है जहां पर पायरुवेट से लैक्टेट बनता है एंड द एंजाइम व्हिच ब्रिंग्स अबाउट दैट रिएक्शन इज लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज. तो हम उस एलडीएच की बात कर रहे हैं. इसका टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वाइड होता है लेकिन इसका मेजर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कहां पर है? इन द मायोकार्डियम, मसल्स एंड लिवर. इसका क्या मतलब हुआ कि कौन कौन सी कंडीशन में बढ़ेगा? जहां पे मायोकार्डियल टिश्यू का डैमेज है, जहां पे जनरल मसल्स का डैमेज है या जहां पर लिवर का डैमेज है. So the levels can rise in MI, in conditions of hepatitis or any other liver disorder and muscular injuries. ठीक है. नाउ आप लोगों ने वो आइसोक्साइड भी पढ़ी होगी, पढ़िए, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? राइट. तो एलडीएच जरूर उसका एग्जांपल देते हैं हम. एलडीएच हैज 5 आइसोएंजाइम फॉर्म. व्हाट इज एन आइसोएंजाइम? कैसे डिफाइन करेंगे आइसोएंजाइम को? This is the problem and that is what ये अच्छा है. जैसे कि सुनने में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. आइसोएंजाइम आप सबने पढ़ा है लेकिन मैंने सब कुछ डिफाइनिंग और एक्सप्रेसिंग इस वर्ड को हम लोग कर रहे हैं. आपने नोट अपना जो भी रेफरेंस समझ में बनाओ उस हिसाब से बनाओ कि एग्जाम अटेंड करो. तो व्हाट आर आइसोएंजाइम? They are compounds which are structurally similar
but have slight difference such that they become specific for a particular substrate. And all isoenzymes will carry out the same function, but their specificity as far as substrate is concerned will vary. तो एलडीएस के 5 फॉर्म्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 and 5. और ये 5 फॉर्म्स कैसे होते हैं? 4 स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनते हैं। वो 2 तरह की होती है, एच एंड एन। जब आप उनके कॉम्बिनेशन करोगे तो आप दोनों कॉम्बिनेशन चाहते हैं कि और स्टार्टिंग से ऑन फोर एच, देखो एलडीएस 1 हो गया आपका ऑन फोर एच 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 एच। एलडीएस 2 क्या होगा? रिप्लेस 1 एच विद एन। गॉट इट? Then what will be 3? H, H, N, N. And all the other way around. Then what is LDH 4? Right? And what will be LDH 5? All 4 N. ठीक है? अब ये इसमें क्या हुआ कि वो जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके कॉम्बिनेशन वेरी किए और इस कॉम्बिनेशन के वेरी करने से इनके टिश्यू स्पेसिफिसिटी, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी वेरी करेगी। किस टिश्यू में कौन सा कंपोनेंट ज्यादा होगा वो वेरी करेगा। तो यू कैन सी कि एलडीएच 1 जो है वो कार्डियक मसल में ज्यादा हो सकता है एंड एलडीएच 5 कैन बी हायर इन लिवर। क्या फायदा हुआ इस कंसेप्ट को जानने का? कि एक तो हम पूरा टोटल एलडीएच वेरी कर और एक हम इसके सब कंपोनेंट आइसोएंजाइम फॉर्म को इलेक्ट्रोफोरेटिकली सेपरेट करें। उस इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट एक्चुअली बना हुआ है और उसके अकॉर्डिंग से पता लग सकता है कि डिफेक्ट कौन सी चीज है। ओके, सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। तो ऐसा ही एक और एग्जांपल है, मैं पहले वो बता देती हूँ। क्रिएटिन काइनेज सीके, अगेन सीके या सीपीके एक ही एंजाइम का नाम है। इट इज अ डाइमर, इट हैज 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, so one is N, other is D। अब आप कौन सी 3 ऑप्शन बनाओगे? one is N, another is D। N for muscle, D for brain। देखो इट इज वेरी इजी टू रिकॉल दिस। सीके का तो और भी आसान हो जाता है। So N, that means it is more active in the muscle, skeletal muscle। DD, it is more active in brain, actually more concentrated in brain। And then what about ND? It is absolutely concentrated in the myocardial muscle, that is myocardial cardiac muscle। एक तो हमने जनरल सीपीके मेजर किया और एक हमने इसके सब कंपोनेंट्स को मेजर किया। तो सीके एसबी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, मार्कर है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर। और व्हेन वी कम टू सीके, सीपीके कौन सा एंजाइम कौन सा रिएक्शन कैटेलाइज करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन दैट कन्वर्ट्स क्रिएटिन इनटू क्रिएटिन फॉस्फेट। और ये जो रिएक्शन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में वैसे आप पढ़ोगे, बट जस्ट टू मेक यू मोर साउंड, क्रिएटिन फॉस्फेट जो कंपाउंड बनता है इसमें जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है दैट इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड। एंड एट टाइम ऑफ अर्जेंट नीड, जब अक्यूट नीड होती है हाई एनर्जी की, उस टाइम पे जब एटीपी प्रोडक्शन में टाइम लग रहा है तब इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है कन्वर्जन ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट टू क्रिएटिन। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो देन एंड देयर मसल्स में यूटिलाइज की जाती है। अब इसका रिलेशन आप इससे समझो कि CKMB इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन द कार्डियक मसल्स, मायोकार्डियम,
जब भी कभी कोई एपिसोड होता है इस्चीमिया का, व्हाट इज इस्चीमिया? डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है कि सेल रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। अगर किसी भी वजह से, किसी ब्लॉकेज की वजह से या किसी हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से सडन डेफिशिएंसी या डिप्राइवेशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, उस टाइम मायोकार्डियल मसल्स जो हैं वो किस पे रिलाई करती हैं? ऑन सीपीके एमबी। सीपीके एमबी जो है उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिन फॉस्फेट का बॉन्ड ब्रेक होगा और एनर्जी मिल जाएगी मायोकार्डियल मसल्स को। एंड इन कंडीशंस ऑफ इस्चीमिया, अगर अक्यूट इंफाक्ट होता है, व्हाट इज इंफाक्ट? डैमेज ऑफ द मायोकार्डियम। तो उस केस में जैसे ही मायोकार्डियल मसल्स जो है डैमेज होंगी, सीकेएमबी जो है वो रिलीज होगा इनटू ब्लड और ब्लड में उसका लेवल मैनीफोल्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज सीरम सीके जो है इट कैन बी रेज्ड इन मायोकार्डियल इंफाक्शन, इन मायोपैथीज और इन जनरल मसल इंजरीज। इवन अगर ट्रॉमा का कोई केस होगा, कोई एक्सीडेंट का केस है जिसमें कोई मेजर इंजरी हुई है, उस पेशेंट का अगर सीपी के लेवल किए जाएंगे तो वो बढ़े हुए हो सकते हैं। नाउ दैट इज हाउ यू हैव टू रिलेट। अगर कोई पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट का केस आया है, उसको 100 की वजह से भी एडवांस हो सकता है, तो आपको जुडिशियसली सोचना पड़ेगा कि आपने सिर्फ सीपी लेवल कराए, सीपी लेवल तो बढ़ेंगे मतलब किसी भी वजह से भी हो सकता है, बट टू इंश्योर कि कोई मायोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हुआ है, आप उसका साइमल्टेनियसली सीकेएमबी भी करोगे और उन दोनों के रेशो को चेक करोगे कि इज इट रेगुलरली इंक्रीज, प्रोपोर्शनली इंक्रीज और देयर इज सम डिक्रीज, राइट। तो कई बार क्या होता है, आइसोएनर्जी फॉर्म्स के रेशो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सिर्फ सिंपल एंजाइम के एक्टिविटी। बर्न्स के केस में भी सीकेएमबी लेवल, सीके लेवल्स बढ़ जाएंगे जिस भी कंडीशन में मसल टिश्यू डैमेज हो रहा है। बर्न्स में भी तो यही होगा, जब जलता है पर्सन तो भी तो उसका मसल प्रोटीन सारा जल रहा है, डैमेज हो रहा है, तब भी सीके लेवल बढ़ सकते हैं एंड दे आर मेनी थाउजेंड टाइम्स। अगर नॉर्मल सीके लेवल 150 यूनिट पर लीटर तक है तो बर्न या इंजरी के केस में वो 20-30 हजार तक भी आ सकता है। तो ट्रांसअमीनेजेस की हम बात कर रहे थे जिससे आपकी अलग से कॉम्पिटेंसी है, इससे हम आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन में भी बताएंगे with reference to the method used. But here we are just referring that these are two transaminases, aspartate aminotransferase को सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांसअमीनेज भी कहते हैं और एलेनिन ट्रांसअमीनेज को ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमीनेज भी कहते हैं। अगर आप कंसेप्ट को समझ लोगे तो आपको याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ग्लूटामेट एंड ऑक्सैलोएसिटेट दो सबस्ट्रेट्स हैं। ग्लूटामेट क्या है? एक अमीनो एसिड है। ऑक्सैलोएसिटेट एक कीटो एसिड है। अमीनो एसिड मतलब जिसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, कीटो एसिड जिसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। इन दोनों में अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा, यानी ग्लूटामेट से कीटो ग्रुप अमीनो ग्रुप ट्रांसफर होगा टू ऑक्सैलोएसिटेट एंड इट कन्वर्ट्स इनटू एस्पार्टेट। तो दोनों नाम याद रह गए। आप दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हो, SGOT और AST, aspartate transaminase. Another is glutamate is again amino acid, pyruvate is a keto acid. जब इनमें ट्रांसअमीनेशन होगा तो क्या बनेगा? एलेनिन। और ग्लूटामेट किसमें कन्वर्ट होगा? अल्फा कीटो ग्लूटारेट, राइट। तो आप इस रिएक्शन को लिख भी लेना, वैसे ये रिएक्शन दोबारा आपको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी बताया जाएगा, ठीक है। नाउ दीज टू एंजाइम्स, इनको बेसिकली तो हेपेटिक एंजाइम्स की कैटेगरी में कहा जाता है बिकॉज इनका सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? लिवर में। अदर देन दैट ये मायोकार्डियम में भी मौजूद रहते हैं। नाउ व्हेन वी से इन मायोकार्डियम, तो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो डिफरेंट है। अगर increase in these enzymes is because of myocardial damage, then the level of SGOT would be higher as compared to that of SGPT. Is it clear? Whereas अगर liver injury है या liver tissue का involvement है, तो उसमें SGPT levels would be far higher
या दोनों का ही लेवल इक्वली हाई होगा। गॉट इट? क्योंकि अगेन आई एम रिपीटिंग, जरूरी नहीं है कि आपके पास हर पेशेंट सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट वाला आए। एक एक टर्म होता है कोमॉर्बिडिटी। क्या होता है इसका मतलब? मॉर्बिडिटी यानी नहीं, वो मोर्टालिटी होता है। मॉर्बिड कंडीशन, यस, प्रोन टू डेथ नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि मॉर्बिड कंडीशन कहते हैं कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी एक क्रोनिक इलनेस होना। लाइक एक पेशेंट है, वो हाइपरटेंसिव है, अब उसको डायबिटीज भी डेवलप हो गया, तो दिस बिकम्स अ कोमॉर्बिडिटी। उसको एक ऑर्गन फेलियर हो गया, दिस बिकम्स अनदर कोमॉर्बिडिटी। रीनल इन्वॉल्वमेंट हो गया, दिस बिकम्स अनदर कोमॉर्बिडिटी। आपने सुना हो तो कोविड टाइम में ये बात बहुत हो रही थी कि एक्चुअली पेशेंट विद कोमॉर्बिडिटीज आर एट हायर रिस्क। क्या मतलब हुआ कि जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है और ऑलरेडी कुछ और मॉर्बिड कंडीशंस हैं, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, रीनल डिजीज है, लिवर डिजीज है, दे आर मोर कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, तो कोमॉर्बिडिटी। तो ऐसे पेशेंट्स में इनके एंजाइम्स की रेशो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें एमआई का केस है और उसमें लिवर टिश्यू भी इन्वॉल्व हुआ है, या ड्रग की वजह से हेपेटिक टॉक्सिसिटी हो गई है, आप उसको देखोगे तो आपको दोनों का रेशो भी जज करना आना चाहिए। गॉट इट? तो AST and ALT ये मैं बता ही चुकी, they are raised in these condition and concentration of AST is higher than that of ALT in myocardium while it is reversed in liver। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। नेक्स्ट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक एंजाइम GGT। GGT ट्रांसफर करता है, कैटेलाइजेस द ट्रांसफर ऑफ गामा ग्लूटामाइल रेजिड्यू ऑफ ग्लूटाथायोन टू अदर सबस्ट्रेट। व्हाट इज ग्लूटाथायोन? अगेन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे आप लोग ग्लूटाथायोन के बारे में। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, एक कंसेप्ट होता है बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड, यानी एक होते हैं प्रोटीन्स। वी नो दैट प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमीनो एसिड, बट जो स्मॉलर प्रोटीन्स होते हैं कंटेनिंग वेरी फ्यू अमीनो एसिड, दे कैन बी टर्म्ड एज पेप्टाइड। और कुछ ऐसे पेप्टाइड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकली, उनमें से एक है ग्लूटाथायोन। Another example can be your hormones oxytocin and vasopressin. They are also peptides. तो GGT एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है लिवर डिसऑर्डर का, और सबसे अच्छा इंडिकेटर है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या अल्कोहलिक सिरोसिस। वैसे आजकल ज्यादातर लैबोरेटरीज GGT को रूटीन LFT में भी काउंट करते हैं। LFT यानी लिवर फंक्शन टेस्ट। और अगर कई बार क्या होता है कि पेशेंट बहुत इनोसेंट बन जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं बिल्कुल कभी कभार, आप जब प्रैक्टिस में बैठोगे इट विल बी अ रूटीन प्रैक्टिस, ठीक है ना, लेकिन आप उसका LFT करा लो, स्पेसिफाई कर दो GGT, आपको पता लग जाएगा कितना कभी कभार। गॉट इट? तो अनदर अल्कलाइन फॉस्फेटेज। नाउ अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये भी बहुत सारे टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसका जुडिशियस यूज करने से काफी इंपॉर्टेंट है ये। इट एक्चुअली कैटेलाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फेट एस्टर्स एट एन अल्कलाइन pH। एक्चुअली फॉस्फेटेज जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक अल्कलाइन एक एसिड, डिपेंडिंग ऑन विच pH दे आर मोर एक्टिव। और फॉस्फेटेज रिएक्शन क्या होता है? काइनेज का क्या नाम होता है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट एंड फॉस्फेटेज एंजाइम का देखना, जहां जहां भी रिमूवल ऑफ फॉस्फेट होगा ना, वहां वहां एंजाइम फॉस्फेटेज। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज इट इज रिलीज मेनली फ्रॉम बोन्स एंड लिवर। तो ये दो ऑर्गन्स हैं जहां पर ये कॉन्सेंट्रेटेड है, बोन्स में भी और लिवर में भी, एंड टू सम एक्सटेंट इट कम्स फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड प्लेसेंटा। ठीक है, एंड लिवर ऑल्सो एक्सक्रीट्स अल्कलाइन फॉस्फेटेज इन बाइल। अभी बिल्कुल क्रिस्प बनाया हुआ प्रेजेंटेशन है, टू द पॉइंट है, आपको बिल्कुल ये पॉइंट फिर से याद होने चाहिए। बाकी अपन इससे आते ही नहीं है। हम सबसे पहली बात, जहां भी बोन्स का डिसऑर्डर होगा
वहां पर एल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल बढ़े हुए हो सकते हैं। इसका एक और नॉर्मल इंटरप्रिटेशन होता है कि इन ग्रोइंग एज, क्योंकि बोन्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस स्टेज में भी एल्कलाइन फॉस्फेटेज की वैल्यू जो है वो हायर हो सकती है। ठीक है, आप कोई भी रिपोर्ट देखोगे अगर रूटीन एलएफटी की, किसी भी लैब की, तो आप उसमें देखोगे एल्कलाइन फॉस्फेटेज में हमेशा 2 रेफरेंस रेंज लिखी होती है या रेफरेंस रेंज के आगे एज मेंशन होती है। अडल्ट के लिए इफ इट इज अप टू 123, देन चिल्ड्रन के लिए इट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस अप टू 246। ठीक है, अच्छा इसमें आप लोग ये देखिएगा कि यूजुअली बुक्स में जो है ना वो अलग अलग यूनिट कई बार होते हैं, कहीं एसआई यूनिट मिलेंगे, कहीं किंग एंगस्ट्रॉम्स मिलेंगे, बट आजकल अक्रॉस द ग्लोब जो यूनिट एंजाइम के लिए यूज होते हैं दे आर यूनिट पर लीटर, क्योंकि एक्टिविटी मेजर करने वाली बात है, तो यूनिट पर लीटर। लिवर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज व्हेन अ पेशेंट इज एट अ कंडीशन ऑफ लिवर फेलियर, या एक टर्म होता है एनसेफेलोपैथी। हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म? एनसेफेलोपैथी या सेफेलस से रिलेटेड है। इस टर्म को आप गूगल पे भी सर्च करके देखना कि इसका क्या मीनिंग आता है। तो एनसेफेलोपैथी एक एंड स्टेज कंडीशन होती है जब हम ये कहते हैं कि लिवर डैमेज इतना हो गया है कि इट इज गोइंग टू बी फेटल, प्रोग्नोसिस पुअर हो गया पेशेंट। ठीक है, एनसेफेलोपैथी लिवर में की डिसऑर्डर्स में होती है जिस कंडीशन के अंदर वो ना तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर पाता है, उस वजह से टॉक्सिसिटी होके ब्रेन जो है उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है एंड द पेशेंट स्टार्ट बिकमिंग डिसोरिएंटेड। बट उस डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। तो उन कंडीशंस में अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज्ड होता है। एक और जो पॉइंट इसमें हम पढ़ रहे हैं दैट इज फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड प्लेसेंटा। तो कोई जीआई डिसऑर्डर हो तो भी अल्कलाइन और फॉस्फेटेज के लेवल्स बढ़े हुए हो सकते हैं। अल्सर्स हैं, कोई ऐसी कंडीशन है, ये क्यों पता होना जरूरी है एज ए क्लिनिशियन? क्योंकि पेशेंट ने आपको डिसऑर्डर बताए, अपनी कंप्लेंट्स बताई और रिपोर्ट लाया, अब आपको सब पॉसिबिलिटीज पता होनी चाहिए, तभी तो आप डायग्नोज करोगे, कंक्लूजन पे पहुंचोगे। और प्लेसेंटा वर्ड पे मैं क्यों एम्फेसाइज कर रही हूँ? क्योंकि अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज हाई आ रहा है बट यू ऑलरेडी नो कि ये फीमेल प्रेग्नेंट है, वो भी उसका जेस्टेशन वीक जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में चल रहा है, इट इज अंडरस्टूड आएगा, तो फिर ये नॉर्मल फिजियोलॉजी हो जाए। ठीक है, so some maximum elevation of this takes place in obstructive jaundice। क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में बाइल जो है वो कॉन्जुगेट नहीं हो पाएगा, जा नहीं पाएगा इंटेस्टाइन में और वो ब्लड में मिक्स होगा। स्मॉलर एलिवेशंस अकर इन कंडीशंस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, रिकेट्स, हाइपरपैराथायराइडिज्म, ऑस्टियोसार्कोमा और इवन बोन मेटास्टेसिस। तो एक तरह से ट्यूमर मार्कर, बोन ट्यूमर का भी एक मार्कर हो सकता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। एसिड फॉस्फेटेज सेम काम करता है लेकिन एट एसिडिक पीएच। इसका मेन जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इन द प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये प्रोस्टेट के कार्सिनोमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है। What about amylase? It is a enzyme which is responsible for digestion of carbohydrates, mainly synthesized in pancreas and in the parotid gland। Parotid gland कहाँ होता है? It is responsible for secretion of saliva। तो salivary amylase and pancreatic amylase दो तरह के amylase होते हैं और ये mainly increase होगा। सबसे अच्छा रिलायबल मार्कर है ऑफ पैंक्रियाटाइटिस एंड अदर देन दैट इसका स्मॉलर एलिवेशन हो सकता है इन पैरोटाइटिस यानी कि पैरोटिड ग्लैंड के इन्फ्लेमेशन। ठीक है, लाइपेज अनदर लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम पैंक्रियास से सर्कुलेट होता है और इसका बहुत रिलायबल है फॉर डायग्नोसिंग अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। थाउजेंड्स में चली जाएगी वैल्यू जो कि बिलो 100 होती है नॉर्मली। ठीक है, आइसोएंजाइम में आपसे डिस्कस पहले ही कर लिया, वी जस्ट क्विकली गो थ्रू द स्लाइड्स, मैं ज्यादा रीड आउट भी नहीं करूंगी। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं, एलडीएच, सीके, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। जहां डेफिनेशन की बात की, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ द सेम एंजाइम सिंथेसाइज्ड फ्रॉम वेरियस टिश्यूज।
LDH exists in 5 isoenzyme forms. It is a tetramer. Subunits may be either H or M. अब ये भी अच्छा तरीका है, अगेन जैसे मैंने MM और B भी बताया था, इसमें H स्टैंड फॉर हार्ट। तो जहां चारों H है, H4 से लेकर और M4 तक 5 आइसोएंजाइम फॉर्म्स हैं। दे कैन बी सेपरेटेड इलेक्ट्रोफोरेटिकली। जो नॉर्मल पैटर्न होता है, दिस यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस। हाईएस्ट इज 2, देन 1, देन 3, 4, 5। सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल कंडीशन में किसका है? LDH2 का। और इसको 1, 2, 3, 4 को 1 इज H4 एंड 5 इज M4, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो मायोकार्डियम में कौन से कॉन्सेंट्रेटेड है? 1 एंड 2। तो इसलिए MI में हाईएस्ट ड्राइव विल बी इन LDH1 और पैटर्न चेंज हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, फ्लिप पैटर्न। और लिवर में कौन सा है प्रीडोमिनेंट? LDH5। तो वायरल हेपेटाइटिस में जो है वो पैटर्न क्या हो जाएगा? हाईएस्ट विल बी LDH5। आप ये 3 पैटर्न देखो, इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, या मैं शेयर भी कर दूंगी ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को। तो यू कैन वेरी वेल सी नॉर्मल पैटर्न, या आप ड्रॉ करोगे यू कैन स्कोर वेल, ठीक है ना। और इसमें कोई याद रखने वाली चीज नहीं है, आपको एक बार में याद हो गया कि नॉर्मल में LDH2 हाईएस्ट होगा, फॉलोड बाय 1, देन 3, 4, 5। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में 1 बिकम्स हाईएस्ट, acute hepatitis में 5 becomes high. That's simple. Again PK मैं पूरा बता चुकी हूँ आपको, 1, 2, 3 भी कहते हैं, but easier is to remember MM, MB and DB. Again बहुत रिलायबल है। और जो कार्डियक एंजाइम्स होते हैं उनका एक और यूटिलिटी होती है कि उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है राइज एंड फॉल का, जो उनकी डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस को बहुत पैटर्न। अभी हम और मार्कर्स की डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फॉर PK द वैल्यू इंक्रीजेस विद इन द फर्स्ट 3 to 6 hours of MI episode, acute MI में, and it reaches to a peak level in 24 to 30 hours, returns back to normal in 2 to 4 days. ये पैटर्न बहुत काम आता है। कभी कभी क्या होता है कि ECG में कुछ चेंजेस जो है ना, वो एक कंडीशन होती है हार्ट फेलियर। एक तो ले मैच कहते हैं हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर जब मेडिकल टर्म में बात करते हैं उसका मतलब होता है कि मसल्स का फंक्शन जो है कितना परसेंट है, उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि लेफ्ट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर। अब उस तरह की ECG चेंजेस ऑलरेडी हैं, और ऐसे में अगर एक्यूट MI का एपिसोड हो तो वो क्लिनिशियन में भी अ बिट पजल, तो उसको कौन सी थेरेपी स्टार्ट करनी है, तो MI के हिसाब से नहीं करना है। At that time के ब्लड मार्कर्स, एंजाइम मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हिस्ट्री देखी जरूरी हो जाती है, कब पहली बार ट्रेनिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंगली यूटिलिटी सोचते हैं। अगर ये है कि अभी थोड़ी देर पहले या विद इन 24 आवर्स में पेशेंट अप्रोच करा रहा तो आप सबसे पहले सलाह दीजिए, आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि पेशेंट का सफर है अकॉर्डिंगली आप पता लगे। अल्कलाइन फॉस्फेटेज अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें नॉन स्पेसिफिक हो जाता है और इसके भी कुछ अलग अलग आइसोएंजाइम फॉर्म्स प्रेजेंट हैं। लिवर में अलग है, बोन में अलग है, प्लेसेंटा में, एंड लेस कॉमनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बट मेरे 2 या 3 बार रिपीट करने में अब कम से कम आप इतना तो रिकॉल करके बता ही दोगे कि किन 4 एरियाज में, किन 4 ऑर्गन में कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो बोन, लिवर, मसल्स एंड placenta and intestine. So moderate increase, 2 to 3 times increase is seen in hepatic disease, and 10 to 12 times of the upper limit can be noticed in obstructive jaundice, or even in carcinoma of head or enlarged lymph nodes. So enlarged lymph nodes जहां हम बोलते हैं that comes directly in relation to carcinoma.
अब हम अगर डिजीज वाइज रिकॉल करना चाहें तो हिपैटिक डिजीज में कौन कौन से मार्कर्स देखे हमने? ALT, AST, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड GGT। और उसमें भी स्पेसिफिसिटी और हम रिकॉल करना चाहें तो पैरेन्काइमल लिवर डिजीज में मार्क्ड इंक्रीज होगी ALT में। अगर मस्कुलर डिजीज इन्वॉल्व है तो उसके अंदर AST ज्यादा होगा। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है या ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर डिजीज है तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज का राइज ज्यादा होगा। और अगर अल्कोहलिक लिवर डैमेज है तो GGT के लेवल काफी हाई होंगे। MI में we have talked about CK-MB, but other than that there may be some other also like cardiac troponin, TNT, BNP, NT-proBNP and also AST and LDH। ठीक है, ये जो और बीच में लिखे हैं ट्रोपोनिन्स एंड ऑल, क्योंकि कार्डियक मार्कर्स पे आपका पूरी एक अलग से क्लास होगी, इसलिए अभी हम इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। देन मसल डिजीज में मेनली CK, उसमें भी CK-MM ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एल्डोलेज एक एंजाइम है। बोन डिजीज एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड प्रोस्टेट कैंसर में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एंड एसिड फॉस्फेटेज। So this is clear about the diagnostic use of enzymes. Then there is therapeutic use. What is the meaning of therapeutic use? जब एंजाइम को एज थेरेपी यूज तो इससे एक्चुअली हम आपको खुद को SDL में टॉपिक्स देंगे कुछ, ठीक है, आपको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के टॉपिक्स भी देंगे, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे। I have just enumerated a few like asparaginase is an enzyme which is very useful in therapy of acute lymphoid leukemia. Another example is streptokinase and urokinase, which are good drugs for lysis of intravascular clots. Hyaluronidase, it acts as a local anesthetic. Pancreatin is important in pancreatic insufficiency. Pancreatic insufficiency यानी जब pancreatic tissue sufficient amount में enzymes नहीं बना पा रहे तब। And papain, it is an anti-inflammatory enzyme. papain जो है वो एंटीबॉडीज को ब्रेक करता है। आप जब इम्यूनोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तब उसमें पढ़ोगे, और पैपेन बताया भी जाता है कि पैपेन के यूज से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया था, स्मॉल चेन, लॉन्ग चेन एंड अदर कंपोनेंट्स। इज इट क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थेरेप्यूटिक यूज ऑफ एंजाइम। Then enzymes as markers of organelle and membranes, यानी कौन सी मेम्ब्रेन के डैमेज में कौन सा एंजाइम बढ़ जाएगा सर्कुलेशन में, अगर वो देखना है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मार्कर एंजाइम्स है 5 न्यूक्लियोटाइडेज, एडिनाइल साइक्लेज एंड सोडियम पोटेशियम ATPase। आप अभी पढ़ोगे जब आगे मेटाबॉलिज्म, आपको पता है सोडियम पोटेशियम ATPase को सेल ट्रांसपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एडिनाइल साइक्लेज जो है वो साइक्लिक AMP बनाने में हेल्प करता है, एंड न्यूक्लियोटाइडेज। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए स्पेसिफिक है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए गैलेक्टोसाइल ट्रांसफेरेज एंड सो ऑन। देन द लास्ट कंसेप्ट, अभी तक हमने कौन कौन से कंसेप्ट पढ़े एंजाइम्स के यूटिलिटी है? जल्दी हो जाएगा। पहला है डायग्नोस्टिक यूज, दूसरा है थेरेप्यूटिक यूज एंड तीसरा था ऑर्गेनेल ना मेम्ब्रेन specificity of enzyme, and then comes enzymes as diagnostic related. डायग्नोस्टिक यूज और डायग्नोस्टिक रिलेटेड को और बातें होंगी। डायग्नोस्टिक यूज में होगा कि किसी डिजीज का आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा, और रिएजेंट के फॉर्म में किसी भी एस्टिमेशन में कौन से एंजाइम हेल्पफुल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिएज इन एस्टिमेशन ऑफ यूरिया, यूरिकेज इन एस्टिमेशन ऑफ यूरिक एसिड, ग्लूकोज ऑक्सीडेज फॉर ग्लूकोज, हेक्सोकाइनेज अगेन फॉर ग्लूकोज, peroxidase, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज, क्रिएटिनिनेज एंड लाइपेज। ये क्या, जब आप
आपके प्रैक्टिकल्स में करोगे अगर किसी वैक्सीनेशन किसी एग्जाम्पल आप वहाँ देखें, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट हैं, यूज एज डायग्नोस्टिक रिएजेंट एंड यूज एज फॉर डायग्नोसिस। ये इसके अलावा कुछ और एंजाइम्स हैं जो आपके एलाइजा में भी काम आते हैं। व्हाट इज एलाइजा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, उसमें नाम में ही पता लग रहा है कि उसमें एंजाइम से लिंक्ड होते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेंगे। तो अगर किसी डिजीज की एंटीबॉडी प्रेजेंट है और उसके एंजाइम लिंक्ड एंटीजन उसमें ऐड करेंगे तो उस एंजाइम के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे किस अमाउंट में एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट। Some enzymes are also concentrated in body fluids. सिर्फ organs में नहीं होते, कुछ other body fluids like LDH. It is present or is concentrated in CSF, that is cerebrospinal fluid, pleural fluid and ascitic fluid. Now CSF जो है वो एक normal fluid है जो हमारे पूरे central nervous system में रहता है present. प्लूरल फ्लूइड जो है वो प्लूरा में है, यानी लंग्स को प्रोटेक्टिव रखता है। इसका अमाउंट बढ़ सकता है या इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है इन वेरियस लंग डिसऑर्डर। और एसाइटिक फ्लूइड जो हमारी विसरा में प्रेजेंट है, और इन वेरियस डिजीज कंडीशंस एसाइटिक फ्लूइड जो है वो भी इन्फ्लेमेशन मार्कर की तरह यूज होता है। ठीक है, तो उन सब में एलडीएच प्रेजेंट होता है एंड इट इज सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। एडिनोसिन डीएमिनेज अगर ये डिटेक्ट हो रहा है प्लूरल फ्लूइड में तो इट इज सजेस्टिव ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। एंड इन यूरिन इफ अमाइलेज इज प्रेजेंट इट इज सजेस्टिव ऑफ पैंक्रियाटाइटिस। इज इट क्लियर? So I hope कि नटशेल आपको पूरा डायग्नोस्टिक एंड अदर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम समझ में आया। So all the best to all of you and wish you all a very happy